اور القدس کے نام پر آمین۔ خدا کے پاک روح سے مدد چاہتے ہیں جو بہترین استاد ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے اس کی مرضی کے مطابق بات کریں، جس سے اس کی کلیسیا کی ترقی ہو۔ آمین۔ ہم 20ویں باب کا 5واں حصہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس باب میں ہر ایک بات بہت ہی قابل غور ہے اور چھوڑی نہیں جا سکتی۔ کوشش کریں گے کہ جتنی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کے مطابق بات کریں۔ لکھا ہے 20ویں باب کے آخر میں 5واں حصہ، اور میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا۔ آسمان اور زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور ایک اور کتاب یعنی کتاب حیات جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے مردوں کو دے دیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ یہ کیا ہے آسمان اور زمین؟ اور اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور کہیں جگہ نہ ملی انہیں، یعنی وہ نہ رہے نہ، ختم ہو گئے، ورنہ کسی جگہ پہ رکھ دیے جاتے یا چلے جاتے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھٹی مور کھولی گئی تو ایک بڑا زلزلہ آیا، سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا اور سارا چاند لال ہو گیا۔ آسمان اس طرح سرک گیا جیسے مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور آسمان سے ستارے اس طرح گرے جس طرح تیز ہوا چلنے سے انجیر کے درخت کے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ آسمان سرک گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو گیا، ہل گیا۔ جیسے کتاب کو بڑی لے کے بڑی کتاب اس کو کپڑے میں باندھیں، خاص کر کپڑا اگر ریشم نما ہو تو وہ سرک جاتا ہے، اس کو پکڑے تو سرک جاتا ہے، جگہ پہ نہیں رہتا۔ اس کا یہ مطلب ہے، مکتوب کا مطلب کتاب، بڑی کتاب، بھاری کتاب جو کپڑے میں لپیٹنے سے پھر اس کو پکڑے تو سرک جاتی ہے، یعنی ہل جاتی ہے، ایک جگہ پہ نہیں رہتی۔ اس طرح آسمان ہل گیا، لیکن وہیں رہا ہل کے،
تو وہیں رہا، سرک گیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو گیا، اور اس کے ستارے گر پڑے سارے، بہت سارے گر پڑے، اور سورج کالا ہو گیا، اور چاند لال ہو گیا خون کی طرح، یعنی آسمان اور اس کے سورج، چاند، ستارے سب میں بہت فرق آ گیا، اپنی روشنی نہ دینے لگے، یعنی تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چھا گئی کا مطلب ہے برگشتگی چھا گئی، لیکن آسمان کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ قائم رہا، وہیں رہا۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین اس کے سامنے سے بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی، رہے ہی نہیں، سرکے سے نہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ سرک گیا، ہل گیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہی نہیں رہا، بھاگ گئے، اتنی دور ایسے بھاگے کہ نشان نہ رہا۔ یہ کیا ہے آسمان؟ یہ آسمان پہلا آسمان ہے، پرانا آسمان۔ آگے ہم پڑھیں گے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ آسمان، یہ پہلا آسمان یعنی پرانا آسمان، پھر نیا آسمان، جیسے پرانا عہد ہے، اور پھر نیا عہد، جیسے پرانا آدم ہے پھر نیا آدم۔ اسی طرح سے یہ پرانا آسمان ہے، پرانی زمین، جو اب آخر میں نہیں رہی، خدا کے سامنے نہیں رہی۔ رسول سمجھاتا ہے کہ پرانا آسمان یعنی وہ آسمان جس کے ہم ایک سورج، ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو سورج کو اڑے ہوئی تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا۔ یہ عورت پرانا آسمان ہے، سورج اڑے ہوئے، چاند اس کے پاؤں کے نیچے، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل اور حضرت یوسف کے خواب کے مطابق 12 قبائل، 12 ستارے، 12 بھائی ہیں، اور مقدس یعقوب نبی اور اس کی اہلیہ، اس کی بیوی، یہ سورج اور چاند کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نبی رسول یہاں بتاتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہ پرانا آسمان غائب ہو گیا، چلا گیا، مٹ گیا، اور نیا آسمان آ گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ بنی اسرائیل جو پرانا آسمان ظاہر کرتے ہیں، جن سے پرانا آسمان اور پرانی زمین ظاہر ہوتے ہیں، وہ اپنے نئے آسمان کو پہچانیں گے اور نئے میں آئیں گے، بقیہ آئے گا۔ اچھا، تو یعنی یہ اپنے مسیح کو جس کے منتظر تھے اور ہیں پہچانیں گے اور مسیح کو قبول کریں گے، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی گڈریا ہوگا، جیسے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں ذکر ہے۔ اور یہ پرانا چاند، پرانا آسمان اور پرانی زمین، آسمان مقدسین پرانے زمانے کے جو خدا پر ایمان رکھتے تھے، مسیح کے منتظر تھے، اور زمین
गैर मसीही, गैर ईमानदार लोग ज़ाहिर किए जाते हैं इससे। तो ये पुराना यानी इसराइल मसीह खुदावंद को पहचानेगा और नए आसमान और नई ज़मीन में जम हो जाएगा। ये है इसका मतलब। जैसे कि मकाशा की किताब के कई बाब में हम इसके मतलब थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अच्छा, तो आगे चलते हैं। और मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा। छोटे बड़े क्या हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुर्दा तो छोटा हो या बड़ा हो, जो हम देखते हैं मुर्दा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन छोटे बड़े से ये मुराद हो सकती है कि जो कम नाफरमान थे और जो ज्यादा नाफरमान थे। नाफरमान तो दोनों ही थे, जैसे बनी इसराइल के दोनों कबीले, बनी इसराइल और यहूदा का कबीला, दोनों कबीले, दो कबीले, दोनों ही मुर्दा थे, नाफरमान थे। लेकिन किसी लिहाज से एक कम नाफरमान और एक ज़्यादा नाफरमान। इसी तरह हम सब इंसानों में से मुर्दा तो सारे हैं, सारे थे, लेकिन कुछ कम नाफरमान, कुछ ज़्यादा नाफरमान। इसी तरह उन किताबों में जो उनके माल के मुताबिक लिखा हुआ था, सजाएं भी उनके अमाल के मुताबिक दी गई। क्योंकि आगे हम लिखेंगे 21वें बाब में कि खुदावंद कहता है, और हर एक के अमाल के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी कईयों ने जिन्होंने कम काम किए उनको भी अजर है, जिन्होंने ज़्यादा काम किए उनके लिए और अजर है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम के लिए किए उनके लिए और अजर है, जो गर्दनें कटवाने तक वफादार रहे उनके लिए और ज़्यादा अजर है। यानी जैसे कामों में फ़र्क है, उनके अजर में भी ऐसे ही फ़र्क है। तो जो छोटे बड़े मुर्दे उसके तख्त के सामने थे और किताबें खोली गई, और फिर एक और किताब यानी किताब हयात, जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये किताब हयात क्या है? ये वही किताब हयात है जो मसीह की किताब हयात है, क्योंकि आगे जाके भी हम पढ़ेंगे 21वें बाब के आखिर में कि उस शहर में कोई नापाक चीज़ या घिनौने काम करने वाला शख्स या हर तरह की झूठ का गढ़ने वाला उस शहर में दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे गए हैं। यानी उस शहर में वही दाखिल होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही जो पाक हैं और जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। यानी ये किताब हयात बर्रा की जो है, यही किताब हयात बाप की थी। किताब हयात जब आदम पैदा हुआ, आदम को शरीयत मिली, आदम को खुदा ने बनाया, उसके साथ खुदा बातें करता था, तो उसका नाम उसने किताब हयात में लिखा हुआ था कि जिंदगी पाएगा। तो वो किताब हयात फिर हम मुकाशफा की किताब के 5वें बाब में देखते हैं कि उस किताब को जब उसकी किताब आदम की किताब सारी मिरास
छीन ली गई तो उसको 7 मोहरे लगा कर बंद कर दिया गया, और वो किताब खुदा बाप के हाथ में थी, हमेशा रही, क्योंकि उसे कोई ले तो नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें तो सब उसी की हैं। तो उस किताब को सिर्फ आदमजाद ही ले सकता था, क्योंकि आदमजाद ने अपनी मिरास गंवाई, उससे छीनी गई, तो कोई आदमजाद आएगा और उसको वापस लेगा। और हमेशा से ये दुहाई दी जाती रही, ऐलान होते रहे कि कौन है जो इस किताब को ले और उसकी मोहरें खोले, यानी इस मिरास को जो आदम की है, आदमजाद की है, वो ले और उसकी मोहरें खोले, यानी उसमें फिर मिरास उसके नाम लिखी जाए। और वो बर्रा, वो खुदा का कलाम जिसने जिस्म अख्तियार किया, आदम बना, ज़रूरी था कि वो आदम बने, आदमजाद हो, आदम की नस्ल से हो, और उस किताब को ले, क्योंकि आदमजाद का ही हक था। आदम बाप आदम के किसी बेटे का, उसकी औलाद में से किसी का फर्ज बनता था कि उस किताब को हदिया देकर, कुर्बानी देकर, कीमत देकर वापस ले। और बर्रा ने उस कीमत को अदा किया और किताब को वापस लिया। इसलिए अब ये किताब बर्रा की किताब याद है, और जो बर्रा के पीछे चलता है, यानी उस पर ईमान लाता है, उसके नाम उस किताब हयात में लिखे जाते हैं। जैसा रसूल बयान करता है, पौलुस रसूल, कि जिस तरह आदम में सब मरते हैं, इसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, यानी वो सब के सब जो मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके पीछे आते हैं, जिंदा किए जाएंगे। तो बेहद अजीब और बड़ी बातें, बर्रा उन्हें जिंदा करेगा। बर्रा इस बात की गारंटी देता है, यकीन दिलाता है बाप को कि इन्हें दोज़ख में मत भेज, मैं इन्हें जिंदा करूँगा, यानी इन्हें वो साबुन दूंगा जिससे ये अपनी पोशाक को धोकर साफ पोशाक वाले होकर तेरे सामने हाजिर हो सके, यानी तेरे फरमाबरदार हो सके। मुर्दा का मतलब है नाफरमान, खुदा से दूर, मैली पोशाक वाला, जिसकी पोशाक दागदार और गंदी है। तो हमने ये कहा है कि मसीह जिंदा करता है और मसीह जिंदा करेगा। पहली क़यामत में हमने देखा है कि मसीह ने उनको जिंदा किया जो उस पर ईमान लाए, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और ये नहीं कि 1000 साल के बाद उसकी बादशाही खत्म होगी, ये एक अरसा है जिसमें गुमराही ना हुई, उसके बाद फिर गुमराही हुई और फिर लोग ठीक हुए। तो मसीह बादशाही करता था और लगातार करता रहेगा, और लोग उसके साथ शामिल होते रहेंगे। तो मसीह, हम कहते हैं कि मुर्दों को जिंदा करेगा। जब हमने ये पढ़ा कि बाप आदम ने गुनाह किया, तो मतलब हम ये भी कहते हैं, समझते हैं पाक कलाम से, कि इस जिस्म के अंदर जो शख्स है असल में वो है। तो उस शख्स को इख्तियार दिया गया कि वो अपने जिस्म को इस्तेमाल करे,
यानी इस जिस्म से अच्छे काम ले जिससे खुदा की फरमाबरदारी ज़ाहिर हो, यानी खुदा के हुक्म बजा लाए। हुक्म ये था और खुदा यही चाहता था कि जिस्म अच्छे काम करे, फरमाबरदारी के काम करे। लेकिन बड़ा अजीब हुआ और जिस्म ने नाफरमानी की। जिस्म ने नाफरमानी की तो जिस्म तो नापाक हुआ और हमेशा के लिए नापाक हो गया, क्योंकि जिस्म में ऐसी एक शरीयत आ गई, ऐसी बुरी ख्वाहिश पैदा हो गई जिससे जिस्म की जान नहीं छूटती। और अगरचे रूह चाहता है, अंदर जो इसके अंदर इस ख़ैमा में जो बंदा बैठा है वो चाहता है कि अच्छे काम करें, तो भी ये जिस्म फरमाबरदार नहीं रहता, यानी वो काम नहीं करता जो रूह चाहता है, जो अंदर बंदा बैठा है वो चाहता है, नहीं करता। तो जिस्म की नाफरमानी से जिस्म भी दागदार हुआ और रूह जो अंदर बंदा बैठा है वो भी दागदार हुआ। दोनों मरे, दोनों ही खुदा के हाथ से दूर हुए। तो मसीह क्या करेगा? दोनों को जिंदा करेगा, यानी मुर्दा रूह को और मुर्दा जिस्म को, तो दोनों को जिंदा करेगा। तो इसका जो कलाम में हम बार बार तज़किरा पढ़ते हैं और हम भी करते हैं, बहुत समझने वाली बात है और मुश्किल भी है, अगरचे रसूल हमें बहुत समझाते हैं। मसलन रसूलों के अकीदा में जो 12 रसूलों की तालीम पर मबनी है, हम पढ़ते हैं, लंबा है मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, कि वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा। एक बात, यानी मसीह खुदावंद मरने के बाद और जी उठने के बाद आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और दोबारा आएगा मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए, यानी दोनों को उनके काम जो उन्होंने जिस्म के वसीला से किए हैं अजर देगा, जज़ा या सज़ा। और फिर रसूलों के अकीदा के आखिर में हम पढ़ते हैं, मैं ईमान रखता हूँ उस पर पाक कलीसिया मुकद्दसों की याकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, यानी जिस्म जी उठेगा। ये जो जिस्म हमारा है मुर्दा है, खुदा उनके सामने इस हालत में हाजिर नहीं हो सकता, वो जी उठेगा और मसीह खुदावंद के वसीला से मसीह खुदावंद ही इसे जिंदा करेगा। बातें तो बड़ी बड़ी लगती हैं और अजीब भी लगती हैं और बड़ी ही मुश्किल, हमेशा से मुश्किल रही। तो देखते हैं कि हम मसीह खुदाम की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं कि जिस्म को भी जिंदा करेगा। क्या बात है! कोई जब मसीह खुदावंद की हम बात करते तो कहते हैं जब दुनिया में था उस वक्त से क़यामत जारी है, यानी मुर्दों का जी उठना जारी है। ये 1000 बरस उसके जीते जी शुरू हो गए थे। अच्छा, तो यानी कौन जिंदा हुए? पहली क़यामत में शरीक हुए जो उस पर ईमान लाए, जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर साफ किए। तो हम मिसाल को ही देखते हैं कि कैसे है। जब मसीह खुदावंद दुनिया में थे तो उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। हम आपको देखते हैं कि रोज अपने मुर्दों को दफनाते हैं, ऐसे ही मुर्दों को मसीह खुदावंद ने जिंदा किया जो मर चुके थे। नाइन की बेवा का, वो जो बेवा थी जिसका बेटा मर गया था, इकलौता बेटा था,
तो बेटे को उसने जिंदा किया लोगों के सामने और अब उसकी माँ के सुपुर्द किया। और फिर यार की बेटी मर चुकी थी तो खुदावंद ने उसे जिंदा किया। और फिर हम देखते हैं कि लाजरस जो 4 दिन से कब्र में था, कब्र पे जाके मसीह खुदावंद ने बुलंद आवाज से उसका नाम लेकर पुकारा और कहा बाहर आ, यानी कब्र से बाहर आ, और वो आया। तो हम ये मिसालें देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने मुर्दों को जिंदा किया, जिस्मों को जिंदा किया। जिस्मों को इसलिए कहता हूँ कि जिस्म ही हम देखते हैं, जिस्म की ही बात समझ सकते हैं। ज़मीनी बातें हैं हम ज़रा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। जब वो बदनों को जिंदा कर सकता है तो इसे हम कह सकते हैं कि वो रूहों को भी जिंदा कर सकता है। क्योंकि एक मिसाल तो हम देखते हैं ना कि बदनों को उसने जिंदा किया, आदमियों को जिंदा किया, तो रूहों को भी जिंदा कर सकता ही होगा। पर रूहों को जिंदा करने की और जिस्म दोनों को जिंदा करने की मिसाल हम देख चुके हैं मसीह के जिंदा होने के वक्त। मत्ती की इंजील में लिखा है आखिर में कि बहुत से जिस्म उन मुकद्दसीन के जो सो गए थे जिंदा हुए। उन कब्रों में जिनमें वो दफन थे वो जिंदा हुए और मसीह के तीसरे दिन कब्र में से निकलने के बाद, जी उठने के बाद वो कब्रों में से निकले। ये मुकद्दसीन, बहुत से मुकद्दसीन जिनमें पुराने अंबिया इकराम थे या दूसरे सब जो खुदा के बरगज़ीदा थे, वो अपने जिस्मों के साथ कब्रों में से निकले। पहले मसीह खुदावंद कब्र में से निकले, जिंदा हुए, और फिर वो मुकद्दसीन पुराने बुजुर्ग कब्रों में से निकले। और कैसे हमें मालूम होता कि वो कब्रों में से निकले? कि वो शहर यरूशलेम में जाकर कब्रों में से निकले और शहर में गए, यानी यरूशलेम में गए और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए, यानी लोगों ने उन्हें देखा और पहचाना और गवाही दी कि ये वो पुराने मुकद्दसीन हैं, बंदे हैं जो बुजुर्ग थे और दफन हो चुके थे। वो शहर में नजर आए मसीह के कब्र में से जी उठने के बाद। तो ये पहचाने कैसे गए? जैसे हम उस वाक़या में देखते हैं जहाँ मसीह की शक्ल बदली गई और सारी शक्ल और सूरत और कपड़े बहुत सफ़ेद हो गए और मूसा और एलिया जो बड़े अंबिया हैं उसके साथ दिखाई दिए। और कैसे हमें पता चलता है कि वो मूसा और एलिया नबी थे? क्योंकि पतरस रसूल की आंखें खोली गई और उसने उन्हें देखा, बातें करते हुए सुना और उनको पहचाना। पहचान के उसने, पतरस ने फिर कहा कि हम 3 खेमे बनाए, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। अच्छा, तो हमने पाक कलाम में से देखा है कि मुर्दे जिंदा हुए, जिस्म भी जिंदा हुए और रूह भी जिंदा हुई।
اور مسیح خداوند خود کہتے ہیں اسی کے بارے میں کہ وہ آخری دن میں زندہ کریں گے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جلدی جلدی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بہت باتیں نہ ہو، ورنہ یہ آرگومنٹ مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ باتیں زیادہ کرنے سے کئی دفعہ بات اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات کر کے پھر وقفہ کریں گے کہ پولس رسول ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ سوال تو ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں۔ ایک مردہ جی اٹھتا ہے تو اس کا جسم کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا نظر آتا ہے، کیا کہتا ہے، کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح کا ہوگا۔ عموماً ہم نے سنا ہے کہ اگر رویا میں کسی کو نظر آئے، جیسے رویا میں ہم نے دیکھا مکاشفی کتاب میں، تو جو ہے رسول کو مقدسین سفید جامہ پہنے ہوئے نظر آئے۔ عموماً جو مقدسین ہیں سفید جامہ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سفید جامہ ہی ہو، دوسرے لباس میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت پہچانی جاتی ہے۔ بات کرنے کا انداز بھی، کیونکہ انسان پہ واضح کرنا ہوتا ہے، ان کی آواز بھی ویسی، شکل و صورت ویسی، تاکہ جس بندے پہ ان کا ظہور ہوتا ہے ان کو پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ تو پولس رسول ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 15 باب میں کہ جیسے ایک پودا بویا جاتا ہے، مثال دیتا ہے وہ کہ گیہوں گندم کا دانہ جب بویا جاتا ہے تو جو جسم پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جس طرح سارے بیج علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں سے جو جسم پیدا ہوتے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ قسم کے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے آسمان پر سورج چاند ستارے ہیں، ان کے جسم اور جلال علیحدہ ہے، زمین پر اسی طرح بدن ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس طرح جو جسم مرتا ہے اسی طرح ایک نیا جسم پیدا ہوتا ہے جو بہت فرق ہوتا ہے۔ تو جس طرح آدم مرا اور زندہ ہوگا، اسی طرح ہم اس کی صورت پر ہوئے تو اس طرح مسیح کی روحانی صورت پر بھی ہوں گے۔ تو پڑھ لیتے ہیں، بہت غور کریں گے، بہت دفعہ پڑھیں گے، بہت دفعہ ذہن میں یہ باتیں رکھیں گے تو ہی بات کی کہیں جا کر سمجھ آئے گی، گھبرانے والی بات نہیں۔ حوصلہ رکھنا چاہیے، باقی سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں مدد کرے۔ تو پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے، اب کوئی کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے بدن کے ساتھ آتے ہیں؟ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے زندہ نہیں کیا جا سکتا جب تک نہ مرے، اور جو کچھ تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، گیہوں کا یا کسی اور چیز کا۔ مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا اس کو ویسا ہی جسم بخشتا ہے، ہر ایک بیج کو اس کا جسم الگ۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، آدمی کا گوشت اور ہے، چپائیوں کا گوشت اور، مچھلیوں کا گوشت اور ہے، پرندوں کا گوشت اور۔ اگر زمینی جسم ہے تو آسمانی جسم بھی ہے، مگر زمینیوں کا جلال اور آسمانیوں کا جلال اور، آفتاب کا جلال اور مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔
मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है। कमज़ोर जिस्म बोया जाता है, कुव्वत वाला जिस्म जी उठता है। बेइज्जत जिस्म बोया जाता है, जलाली जिस्म जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा है, पहला आदमी यानी आदम जीता नफ्स बना और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाला रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था, बल्कि नफसानी था। रूहानी बाद में हुआ। पहला आदमी ज़मीन से है यानी खाकी है, दूसरा आसमानी है। जिस तरह वो खाकी है, इस तरह और भी खाकी है। जिस तरह वो आसमानी, इस तरह और भी आसमानी है। जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर हुए, इस तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। मेरा मतलब ये है कि जिस्म और खून खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता, ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर बदल जाएंगे एक दम में, एक पल में। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये पानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। जब ये मरने वाला जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और मरने वाले जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा कि मौत फतह का लुक़मा हो गई। है मौत तेरी फतह कहाँ रही? है मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है, गुनाह का जोर शरीयत। पर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फतह पाते हैं। आमीन। यानी ये बड़े भेद की बात है जो रसूल हमें समझाता है कि आखिरी वक्त में मौत कैसे मरेगी। जिस्म और रूह दोनों जिंदा किए जाएंगे और मसीह खुदावंद इन्हें जिंदा करेगा। जिस्म बोया जाता है और जी उठता है, और जी उठा जिस्म लिपालक जिस्म होकर फिर ऐसा जिस्म होगा जो कभी नाफरमान ना होगा, और ऐसे ही रूह है जो कभी नाफरमान ना होगी। और आखिरी दिन ये लिपालक जिस्म के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद के हुजूर खड़ी रहेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।